Thank you a lot. Namaste. Okay. Thank you so much, ma'am. Hello. Thank you, sir. Again, I would like to request Dr. S. Sindhe sir for vote of thanks of this session. Dr. S. Sindhe sir. Thank you, Gunekar sir. Behalf of organizing committee of international discourse, I am very much thankful to Dr. Annapurna Madam for give detailed information how to cure different disease and disorder with the help of yoga. And Madam also told regarding the diet plan. For such a nice and beautiful informative lecture, Thank you, sir. Thank you a lot. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you. Okay, sir. So, dear participant, it was our second session of the day, and we will start our third and last session very shortly. Okay, thank you. स्टार्ट कीजिए, मैडम आ गई है, गोनेकर जी, मैडम आ गई है। ओके सर, मैडम आ गई क्या? हाँ जी। ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। ओके, dear participants, our chief guests have been connected with us. This is our third and last session of this day. Our chief guest, today's our chief guest, Mrs. Farjana Siraj. She is from Chennai, and her topic is Yoga Way of My Life. Let me very short introduction of Mrs. Farjana Siraj. Mrs. Farjana Siraj, MSc, MD, PhD scholar. She is founder and chief therapeutic consultant, acupuncturist, and at Orange Ray Alternative Medicine Clinic in Chennai. Mrs. Farjana Siraj has trained under the world-renowned Padma Vibhushan BKS Iyengar ji and is a certified BKS Iyengar yoga teacher since 2010 by the RIM Yoga Institute, Pune, India. She is currently a PhD scholar at SVYASA University in Bangalore. She has specialized in treating acute and chronic pain in musculoskeletal conditions through yoga, thereby avoiding surgery. She also treats on non-communicable disease and lifestyle disorders by combining yoga therapy, nutrition, and naturotherapy. She offers corporate and private yoga workshops and has been a speaker and Indian representative for yoga at 8th International Traditional and Complementary Medicine Conference, Kuala Lumpur 2014, and is a regular faculty teaching therapeutic yoga and International Yoga Festival, Parmarth Niketan, Rishikesh. Held as one of top 16 most powerful yogins of India 2019. She is a resource person in Ayush conferences. Her clinic, Orange Ray, has been awarded one of top 10 corporate wellness services providers. She has represented Ayush in the AAPI Annual Medical Conference for Yoga in Hyderabad 2019. So this is very short introduction of Mrs. Farjana Siraj ma'am, and I would like to request ma'am to share your own ideas and knowledge with us. Please, ma'am. Namaskar, everyone. Namaste, madam. Welcome. Thank you. It's my pleasure to be a part of this second international discourse on yoga and health. A big thanks to Dr. Patil for inviting me over here. And I'm really happy to be a part of this. मैं हिंदी में बोलूंगी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, और मैंने जस्ट शुरू कर लिया है इंग्लिश में बिकॉज मुझे थोड़ी उत्तेजना मिल गई मैंने जब डॉक्टर अन्नपूर्णा को इंग्लिश में बोलते हुए सुना तो. So anyway, it was a very nice informative talk by Dr. Annapurna. She said most of the things on therapeutics and it was very good. मैं अपना व्यू पॉइंट बताना चाहती हूँ योग के बारे में.
योग से मेरा परिचय बहुत छोटी उम्र में हुआ था, जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, और उन दिनों में कलकत्ता में रहती थी, और वहाँ उस समय पे कोई जिम्स नहीं हुआ करते थे, और छोटी बच्चियों को माँ बाप जल्दी से अकेले बाहर नहीं भेजते थे, तो ऐसे वॉकिंग वगैरह होता नहीं था। तो मुझे हमेशा, मैं ढूंढती रहती थी कि कैसे मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, फिट रखूं। तो मुझे कहीं से एक किताब मिल गई जो हिंदी में थी योग के ऊपर, तो मैं खुद उसको पढ़ पढ़ के सेल्फ प्रैक्टिशनर बन गई, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। तो वैसे मैंने शुरू किया योगा। पर जैसे मैं बड़ी हुई और मेरी जिंदगी में ये कमर का दर्द एक हादसा बन के आया, और उस टाइम आयंगर योगा ने मुझे टोटली ठीक किया कमर से। और उस टाइम से, तब मैं जब अभी पिछले अपनी जिंदगी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक एक कड़ी कैसे जुड़ती हुई आई है। उस टाइम से जो परिचय हुआ था 13 साल की उम्र में, जो प्रैक्टिस कर रही थी, जो फिर जब 30 साल की थी तब ये कमर का दर्द आया, और कैसे मैंने योग को अपना लिया और योग में ही मैंने सब कुछ पा लिया। So that is yoga is my way of life. तो आज मैं ये बताना चाहूंगी कि योगा को मैंने कैसे अपनी जिंदगी बना लिया, जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, जिंदगी बना लिया। पहले तो पतंजलि का डेफिनेशन है योगा के, योगा चित्ता वृत्ति निरोधः, तो वो तो है ही। तो चित्ता में कैसे वृत्तिस को, फ्लक्चुएशंस को माइंड में निकालते हैं। बट मेरा पर्सनल, बिकॉज मैं अपने आप को एक कर्म योगी मानती हूँ, और मेरा पर्सनल डेफिनेशन जो योगा का है, मैं भगवत गीता से लेती हूँ, जो है योगः कर्मसु कौशलम, विच इज बेस्ट इज हर एक कर्म को कैसे कौशल बनाया जाता है, कैसे स्किलफुल बनाया जाता है, वही मेरे लिए योगा है। ओके, सो दिस इज माय पर्सनल मोटो। तो मैंने, अगर हम योगा की बात करें, तो आजकल सब लोग योगा को हठ योगा की तरह ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ योगा मैट लिया, कुछ आसना किया और योगा हो गया। सो दैट इज ओनली अ वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ योगा। वो अगर बोले कि 8 स्टेप्स में से सिर्फ एक ही पार्ट हो गया वो तो, और बाकी 7 स्टेप्स तो सब लोग भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर अन्नपूर्णा ने करेक्टली बताया कि हमारी शुरुआत योगा से जो परिचय पतंजलि ने कराई है, वो यमा नियमा से है। तो वो 2 स्टेप्स तो हम कूद के फांद के चले जाते हैं और सीधे आसना पर आ जाते हैं, और कभी कभी तो आसना किए बिना ही प्राणायाम करने बैठ जाते हैं। आजकल मैं देखती हूँ सब लोग बड़े बड़े ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। पर अगर हम नोटिस करें तो प्राणायाम इज द 4th स्टेप। तो पहले 3 स्टेप तो हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अगर प्राणायाम के बारे में अगर बात करें, आई नो ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक, बट मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम करने के पहले 2 चीज करना बहुत जरूरी है, क्लेंजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। Cleansing of your nadis and chakras, and strengthening of your physical and mental faculties. Without these 2, there is no pranayama. Okay? वो ऐसे हो जाता है कि हम एक AC के बॉक्स के अंदर अगर 350 वोल्ट की जरूरत है और हम 500 वोल्ट डाल देंगे, तो AC अच्छा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। So that is what is pranayama. प्राणायाम में इतना पावर है, इतनी एनर्जी है कि अगर हम बिना आसना किए, अगर हम तपस नहीं करते हैं, वापस आ गए यमा नियमा में हम लोग, तो अगर आप देखिए इतना ब्यूटीफुली ये 8 स्टेप्स पतंजलि ने जो बनाया है, अगर हम कहीं भी मिस्टेक करते हैं, हमको लाके पटक देते हैं वहां पे यमा नियमा में भी। सो अगर वंस वी फॉलो द यमा नियमास, वी आर एक्चुअली होम, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं, यही ये है। तो जहां मेरी जिंदगी का सवाल है, मैंने सोचा कि ये पूरी जिंदगी का आधार, जो एक नींव है, मैं 4 स्तंभ, 4 पिलर्स पे रखना चाहती हूँ। और ये मैंने आयुर्वेद, जो योगा की सिस्टर साइंस से लिया है, और वो है आहार, विहार, आचार, विचार। अगर हम ये चारों स्तंभ को मजबूत बना देते हैं, तो हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। ओके, सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। तो आहार ऑब्वियसली हो गया हम जो खाते हैं, बट इससे थोड़ा ज्यादा मैं जाऊंगी, नॉट जस्ट खाना। अंग्रेजी में एक अच्छा सा शब्द है जो मुझे शायद हिंदी में नहीं मिल रहा, अगर आप कोई मुझे बता पाए तो, उसको बोलते हैं इंजेशन, INGEST, इंजेस्ट। दैट मीन्स हम सिर्फ मुंह से नहीं खाते, हम आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, और हम क्या बोलते हैं, नाक से क्या सूंघते हैं, हर चीज हमारे शरीर में जाती है। ये सारे जो 5 सेंसेस हैं, वो द्वार है।
वो शरीर के अंदर क्या क्या जाता है उस पर। अगर आप सोचना चाहें, आप गांधी जी के 3 बंदर भी ले सकते हैं, that see no evil, hear no evil, say no evil. ओके, सो वो इंजेक्शन हो गया, वो हमारा आहार हो गया, हम क्या खाते हैं, मतलब क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सब इसी में आ गया हमारे आहार में। सो अगर हम थोड़ा सतर्क रहें कि हम देखें कि हम क्या करते हैं। सी हमेशा इफ यू आर ओनली सीइंग वायलेंट थिंग्स, हमारे अंदर जो परिस्थिति होती है, जो एनवायरनमेंट पैदा होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी सुख शांति का। हम पूरा दिन हम वायलेंट देखते हैं, हम गालियां सुनते रहते हैं, और हम जाके सीधा प्राणायाम करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू रियली हेल्प अस मच। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये जो करते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरे रखें पहले बाय। सो अगेन यहाँ वापस आपका आ गया प्रत्याहारा, राइट। तो अगर, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सब कुछ आप घूम घुमा के वापस यमा नियमास में ही आ जाएगा। तो प्रत्याहारा आ गया इसमें कि हम आहार क्या करते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया आहार विहार। नाउ विहार मीन्स, इसका लॉजिकल ट्रांसलेशन होता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो डॉक्टर अन्नपूर्णा ने भी बहुत क्लियरली बोला कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिन का 1/3 हिस्सा, 24 घंटे में से 8 घंटे डॉक्टर्स बोलते हैं हमको सोना है। बट सिर्फ सोना यानी कि लेटना नहीं होता, सोना होता है। ओके, सो योर डीप स्लीप, सोने के टाइम पे हमारे शरीर में सारा रिपेयर वर्क होता है जो कुदरती बनाया गया है। सो अगेन इफ वी फॉलो एवरीथिंग ना, बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मैं 8 घंटा तो सोती हूँ, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरा नेक्स्ट सवाल होता है आप कितने बजे सोते हो? तो बोलते हैं हम रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं। तो दिस इज नॉट स्लीपिंग। हमारे बॉडी में एक सर्कैडियन रिदम होता है जो सूर्य की तरह के साथ चलता है, इट्स अ बायो रिदम। एंड अगर आप देखें पुराने जमाने में लोग सुबह जब सूर्य उगता था 4 बजे उसके साथ उठ जाते थे, जो हमारा अभी हम ब्रह्म मुहूर्तम के नाम से पॉपुलराइज करते हैं। उसी टाइम उठ के अपना काम शुरू करते थे, अपनी प्रैक्टिस शुरू करते थे। और सूर्य अस्त होने के टाइम पर सब कुछ बंद, बिकॉज उस टाइम तो सब फार्मर्स हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, लाइट नहीं होती थी, तो उनका बॉडी का रिदम इतना ब्यूटीफुली चलता था। और जब से ये लाइट आ गई है तो हम 6 बजे का 8 बजे, 8 बजे का 10 बजे, अब तो 12-1 बज जाते हैं सबको। तो यही हम बड़ी से बड़ी गलती करते हैं। सो रेस्ट डज नॉट जस्ट मीन लाइंग डाउन एंड स्लीपिंग 8 आवर्स, मतलब कहाँ टाइम के हिसाब से। अगर हम अपने शरीर का मैक्सिमम यूटिलाइज करें और प्रकृति के साथ मिल के जुड़ के चले तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डिजीज। ओके, ये डिजीज इसीलिए ही आया है कि हम प्रकृति से अलग हो गए हैं। आज आप कोविड ले लो या कुछ भी ले लो। सो ये हो गया हमारा आहार। सॉरी विहार। तो विहार में नॉट ओनली रात का रेस्ट, हम कैसे रिलैक्स होते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, जो सब मैं भी गिल्टी हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, बट हम अपने आप को सबके साथ एक हरीफाई में रहते हैं, सबके साथ एक स्पर्धा में रहते हैं, एक कंपटीशन में रहते हैं। ये वो कर रहा है, मैं भी ये करूं, बट हम भूल जाते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन इज अ यूनिक इंडिविजुअल। हमारी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, हमारे वीकनेसेस अलग हैं, और ये 24 घंटे सबको मिले हैं। अगर आप चाहें तो पूरे 24 घंटे काम करेंगे और फिर बत्ती बुझ जाएगी। सो अगर पहले स्पीकर ने बताया था कि हमारी लेंथ, आयु होती है सिर्फ ईयर्स से नहीं, हमारी ब्रेथ से, विच इज वेरी ट्रू। बिकॉज हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हम जल्दी जल्दी हमारी आयु खत्म कर लेंगे। तो ये जो एक स्टोरी है ना, कि एक लकड़हारा था और किसी ने उसको पूछा कि तुम 1 घंटे में जब एक पेड़ काटते हो तो तुम 8 घंटे में कितने पेड़ काट सकोगे? तो उसका आंसर होता है 8, बट वो गलत है, क्योंकि उसको बीच में बैठ के अपने एक्स को तेज करना पड़ता है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक्स को तेज करें। एक्स को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बट या एक्स को तेज करें। सो ये, इसको हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम आपको बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एक्स को तेज नहीं करेंगे तो आप फिर सेकंड वाला जो पेड़ है आप 2 घंटा लेंगे उसको काटने में। तो इससे बेटर है कि आप 10 मिनट बैठ जाएं, अपने एक्स को तेज कर लें और जल्दी से फिर पेड़ काटने लग जाए। सो ये व्हाट इज कॉल्ड एज शार्पनिंग द एक्स, ये बहुत जरूरी है। इसको हम रेस्ट बोलते हैं।
So other than sleeping, you need to give rest to your body and your mind, most importantly, because mind तो चलते रहता है. ओके, सो ये हो गया हमारा विहार, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. कैसे कर सकते हैं माइंड का रिलैक्सेशन? अगेन पतंजलि ने बताया है, विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस, प्रत्याहारा, फिर है धारणा, ध्याना, बहुत सारा कुछ है माइंड को रेस्ट करने के लिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि हम अंदर से हमारी जो वांट्स है, जो डिजायर्स है, उसको थोड़ा कम कर दें. सो आहार विहार. तीसरा हो गया आचार, कॉन्डक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं. कैसे हम अपने आप का, हमारा आचार को सुधारे. सो आचार होता है हम किन लोगों के साथ कंपनी रखते हैं. बिकॉज इंग्लिश में बोलते हैं, देयर इज अ कहावत कि यू आर व्हाट द कंपनी यू कीप. सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ है जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो हमेशा चीट करते हैं, जो हमेशा उनका कैरेक्टर बहुत डाउटफुल है, तो ऑब्वियसली कुछ छींटे तो आप पे भी गिर जाएंगे जरूर से. ओके, सो आचार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू शुड बी सराउंडेड. एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है. तो आप अपनी कंपनी कैसे रखते हैं? तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बचपन में सिखाई गई थी स्कूल में. ऐसा नहीं था कि ये नहीं सिखाई गई, लेकिन कभी हम जब बड़े हुए, ये जिंदगी की भाग दौड़ में लग गए, कहीं ना कहीं हम इसको भूल गए हैं, या फिर हम उसको प्रैक्टिस करना, अपनी जिंदगी में शामिल करना भूल गए हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आचार कैसा हो, और आचार के अंदर हमारा डिसिप्लिन भी आ जाता है. ओके, सो अगेन बैक टू यमास एंड नियमास. सो व्हाट इज डिसिप्लिन? तपस. हम कैसे तपस करते हैं, हम कैसे योगा प्रैक्टिस करते हैं, हम कैसे अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, हम कितना अपनी काम की तरफ हमारा लॉयल्टी है, हमारे कंट्री की तरफ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. तो वो सब आचार में आ जाता है. तो वापस इट ऑल गोज बैक टू तपस, विच इज सेल्फ डिसिप्लिन. और लास्ट वाला हो गया आचार, आहार विहार, आचार एंड विचार. सो व्हाट डू यू थिंक? तो सबसे पहले ये कुछ एक सोच जो है, उसका सीड कहाँ आता है? हमारे दिमाग में. ओके, और वो सीड को हम अपने आचार से पानी देते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और एक दिन वही छोटा सा बीज एक पेड़ बन जाता है. वो जब पेड़ बन जाता है, हम हैंडल नहीं कर पाते. हम उस टाइम पेड़ में इतनी ताकत होती है कि हम खुद ही उसके नीचे दब जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आए, उसी टाइम वो बीज को हमको उखाड़ फेंकना है, उसको वहां नहीं पनपने देना है. हम उसको अपनी अटेंशन का पानी और खाद नहीं देना चाहिए. उस टाइम वही गलत सोच को उसी समय निकाल के फेंक देना है और अपने माइंड में क्लियर रखना है. तो अगेन कैसे कर सकते हैं? तो अगेन सत्संगा, वेरी इंपॉर्टेंट. और भक्ति एक ऐसा मार्ग है योगा का जो सब कुछ आसान कर देता है. तो भक्ति को जब बोला गया है, भक्ति में क्या है? दो चीज है. सिर्फ प्रेमा नहीं होता भक्ति में प्रेमा के साथ होता है सरेंडर, ईश्वर प्रणिधाना. सो अगेन वापस आ गए हम यमा नियमा में. तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यमा नियमा बराबर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमने आधी जंग जीत ली. आधी नहीं, क्या ऑलमोस्ट जंग जीत ली. सो ईश्वर प्रणिधाना जो है, वो जो भक्ति है वो प्रेमा भाव से आता है और ईश्वर प्रणिधाना से आता है. तो जब भी हमको लगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड में लोग पूछते रहते हैं क्या करें, तो मैं बोलती हूँ आप सब कुछ करिए जो इम्यूनिटी में कर सकते हैं. अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, बराबर से सोइए, सब कुछ, और लास्ट में ईश्वर पे छोड़ दीजिए. बिकॉज वही हम कर सकते हैं, इतना ही हम कर सकते हैं. अगर हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही ले लेंगे कि मैं ये करूंगी और मैं वो भी करूंगी, तो फिर वहां हमारी भक्ति का कोई ये है ही नहीं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू राइट. बट भक्ति का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोफे पे से उठने वाला नहीं हूँ, मैं पलंग पर से उठने वाला नहीं हूँ और ईश्वर आप सब कुछ कर लीजिए. नहीं, योगा है, योगा कर्मसु कौशलम. हर एक कर्म करना है. विदाउट कर्मा देयर इज नो फला एट ऑल. सो आई थिंक दिस इज व्हाट मैं समझती हूँ अपने आप के लिए योगा है. अगर वी जस्ट फाइंड दीज 4 पिलर्स, ये 4 स्तंभ अगर हम ढूंढ ले और इसकी नींव हम यमा नियमास पे रखें, तो आई थिंक वी ऑल शुड फाइंड आवर ओन पाथ्स. सो बस मैं यही कहना चाहूंगी. सुबह से लंबी चल रही है तो मैं शॉर्ट में इसको फिनिश करना चाहती थी, और आई होप दैट ये सब को कुछ ना कुछ इससे प्रेरणा मिले.
Thank you very much. Thank you, madam, Thank you, sir. for your nice lecture and nice intimation towards us. Dr. Mahale will address the vote of thanks now. Our senior professor is there. नमस्कार. आदिवासी सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ दडगाव संचलित महाराज जनार्दन पोहऱ्या वडवी कला वाणिज्य व श्री विष्णू कृष्ण कुलकर्णी विज्ञान महाविद्यालय दडगाव या आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने शारीरिक शिक्षण विभागाच्या वतीने जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधता 2 दिवसीय इंटरनॅशनल डिस्कवर ऑन योगा अँड हेल्थ या विषयावर वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. या वेबिनारसाठी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर पी पाटील सर, माननीय कुलगुरू प्रोफेसर डॉक्टर माहुलीकर सर, माननीय सहसंचालक उच्च शिक्षण जळगाव विभाग जळगाव माननीय सतीशजी देशपांडे साहेब, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावचे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य माननीय दादासाहेब दिलीप रामू पाटील, आमच्या संस्थेचे चेअरमन माननीय हेमंत भाऊ वडवी, संस्थेचे सचिव माननीय उदयकुमारजी वडवी, सहसचिव माननीय अरुण भाऊ वडवी, आमचे मार्गदर्शक माननीय भिकाभाऊ वडवी, माननीय प्राध्यापक डॉक्टर कुलकर्णी साहेब, माननीय डॉक्टर PS मीना साहेब, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य माननीय नितीनजी बारी, विज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर AB चौधरी सर, या सर्वांनी आमच्या या 2 दिवसीय वेबिनारसाठी शुभेच्छा दिल्या. त्याबद्दल त्यांचे मनस्वी महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. तसेच या 2 दिवसीय सुरू असलेल्या वेबिनारसाठी ज्यांनी आम्हा सर्व प्राध्यापकांना आणि श्रोत्यांना योगाच्या संदर्भात मार्गदर्शन केलं असे माननीय डॉक्टर श्यामप्रसाद विनोद पुणे, माननीय डॉक्टर BK बांद्रे इंदौर, माननीय सोहम जॉन बेंगलोर, माननीय डॉक्टर अविनाश यादव इंदौर, माननीय डॉक्टर अन्नपूर्णा के मणिपालहून त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आणि आत्ताच आपण ज्यांच्या ओघवत्या शैलीने हसत मुखाने ज्यांचं आपण योगाच्या संदर्भात व्याख्यान ऐकलं अशा माननीय डॉक्टर फरजना सिराज यांनी चेन्नईवरनं आम्हाला मार्गदर्शन केलं. तर त्यांनी प्रामुख्याने भगवद्गीता हा एक सर्व माणसांसाठी कसा उपयुक्त ग्रंथ आहे या संदर्भात त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आणि जीवनामध्ये आहार, विहार, आचार आणि विचार हे किती महत्त्वपूर्ण असतं या संदर्भातही त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. ज्या ज्या मान्यवरांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो. तसेच या वेबिनारमध्ये ज्या ज्या श्रोतू बंधू भगिनींनी सहभाग नोंदविला त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. विविध वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार बंधू भगिनी यांनीही आमच्या या वेबिनारची दखल घेतली. वेळोवेळी आमच्या वेबिनारच्या संदर्भात
त्यांनी जनसामान्यांपर्यंत आमच्या या महाविद्यालयाची माहिती पोहोचवली, त्यांचेही मनपूर्वक मी या ठिकाणी आभार मानतो. या वेबिनारसाठी तंत्र सहाय्यक म्हणून निरुपम हिरालाल पाटील यांनी मोलाची कामगिरी सोपवलेली आहे. आणि त्याच पद्धतीने आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एच.एम. पाटील सर यांच्या सौभाग्यवती माननीय संगीताताई पाटील या देखील प्रत्येक कार्यक्रमांमध्ये येत असतात, आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात. आणि यांची बांधिलकी कुटुंबापुरती नसून त्यांची बांधिलकी सामाजिक शैक्षणिक या कार्याशी त्यांची नाड जुळलेली आहे. वेळोवेळी त्या समाजाला देखील मार्गदर्शन करत असतात अशा संगीताताई पाटील. त्याच पद्धतीने महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एच.एम. पाटील सर हे नेहमी हिरिरीने सर्व गोष्टींमध्ये सहभागी होत असतात. चांगल्याचं ते नेहमी कौतुक करीत असतात. असे आमचे उमदे प्राचार्य डॉक्टर एच.एम. पाटील सर यांचेही मी महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो. आमच्या महाविद्यालयाचे क्रीडा संचालक माननीय डॉक्टर दिनेश पाटील सर यांनी या वेबिनारसाठी पुढाकार नोंदविला आणि आदरणीय डॉक्टर प्राचार्य सरांना त्यांनी सांगितल्यानंतर प्राचार्य सरांनी त्यांना होकार दिला आणि दिनेश पाटील सरांनी हे वेबिनार घडवून आणलं आणि म्हणून त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. रजिस्ट्रेशनच्या कामासाठी प्राध्यापक अनिल शिंदे सर असतील, गोणेकर सर असतील, हरिभाऊ पवार सर असतील, सुनील शिंदे सर असतील, या सर्वांनी रजिस्ट्रेशन आणि वेबिनारच्या संदर्भात जी काही माहिती लागत असेल ती सगळी माहिती त्यांनी संकलित केली, वेळोवेळी लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवली. या सगळ्यांचे मनपूर्वक मी आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापकेतर बंधू आणि भगिनी या सगळ्यांनी या वेबिनारसाठी सहकार्य केलं. वेळोवेळी त्यांनी देखील मार्गदर्शन केलं आणि म्हणून महाविद्यालयाच्या वतीने या सर्व महानुभावांचं मी आभार व्यक्त करतो. पुनश्च एकदा कालपासून तर आजपर्यंत ज्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं त्या सर्वांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने माननीय प्राचार्य सरांच्या वतीने या सर्वांचं आभार मी मानतो. आणि या ठिकाणी आपलं 2 दिवसीय जे काही वेबिनार सुरू होतं त्या वेबिनारला पूर्णविराम आपण देत आहोत. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. नमस्कार. धन्यवाद मॅडम.